کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھو وہاں پہ اس انتہا پسندی کو آپ کنٹرول کر دو، حکومت سے میں نکل جاؤں گا. آپ انتہا پسندی کنٹرول کرو جب میں اپنے گھر چلا جاؤں. ہم اپنے گھر چلے جائیں نا. ہماری عاصمہ میں نے ایک بات آپ حکومتوں میں اگر آپ نہیں ہے تو یہ عباسی صاحب تو کم از کم حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے پورا پاکستان اس نے سنبھالنا ہے. عباسی صاحب وہ انتہا پسندی دیکھو جو ہماری عورتوں پہ اٹیک ہو گئی، ہمارے خان صاحب پہ اٹیک ہوا. ہم اپنے جنازوں میں اپنے گاؤں میں نہیں جا سکتے. وہ جو آپ نے گفٹ 63 سال پرانا تحفہ آپ نے دیا ہوا ضیاء الحق نے اور جنینوں نے دیا ہوا، اس کو آپ سنبھالو نا. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اس کو امن لے ہو. مجھے امن دے ہو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے امن چاہیے. ہماری پارٹی کی پالیسی امن ہے، لیکن تم نے تو انتہا پسندی میں مجھے ڈال دیا. بات ایک مرتبہ میں پھر کروں گا، وہ یہی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، جو ٹارگٹ کلرز ہیں، جو بھتہ خور ہیں، سب کی لسٹیں موجود ہیں. ابھی میں کراچی میں ہو کے آیا ہوں، گلیوں میں بازاروں میں ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہ واردات کس نے کی ہے، وہ واردات کس نے کی ہے، فلاں پارٹی کا فلاں آدمی ہے، فلاں پارٹی کا فلاں آدمی ہے. اور یہاں یہ ابھی آپ کے سامنے اپنا انہوں نے کی ہے بات کہ جناب یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے. اگر لوگ جو ہیں وہ علاقے آپس میں بانٹنے لگے تو حکومت کہاں ہے، رٹ کہاں ہے گورنمنٹ کی؟ اور یہ جو لسٹیں موجود ہیں ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، کلرز کو، قاتلوں کو، جن کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، انہیں کون پکڑے گا؟ صدر مملکت اگر نہیں پکڑتا تو وزیر اعظم پکڑے، اگر وہ نہیں پکڑتا تو پھر چیف منسٹر سندھ پکڑے، وہ نہیں پکڑتا تو ہوم منسٹر جو ہے سندھ کا پکڑے، مرکز کا جو وزیر اپنا داخلہ ہے وہ پکڑے. جب یہ سارے نہیں پکڑیں گے، جن کے پاس سی آئی ڈی ہے، جن کے پاس مجھ لے ایک جملہ، جن کے پاس اسپیشل برانچ ہے، جن کے پاس آئی بی ہے، جن کے پاس آئی ایس آئی ہے، جن کے پاس ریاستی ادارے ہیں، اگر یہ انفورس نہیں کریں گے حکومت کی طاقت کو تو پھر ایک ہی بات ہے، استعفیٰ دو. اپنی مانو نالائکی، اپنی مانو جہالت. اگر تم کسی گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں ہو اور کہو جی کوئی دوسرا آدمی آئے، دوسرے لوگ آئیں اور امپلیمنٹ کریں، اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بدنیتی اپنی جگہ. اور پھر یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ ہیں بھتہ خور، ان کے لوگ ہیں لٹیرے، ان کے لوگ ہیں جو لینڈ مافیا ہے، اور ان میں سے یہ لوگ حصہ لیتے ہیں، یہ جو حکمران ہیں یہ حصہ لیتے ہیں ان میں. صحیح. ایک چھوٹی سی بریک ہم لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد یہ بھی بات کریں گے، پبلک سے بات کریں گے کہ پاکستان کے شہری کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا یہ قومی مسئلہ بن سکتا ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں مل کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پبلک کے پاس جاتے ہیں جو کہ پاکستان کی عوام یہاں پہ اسلام آباد میں کیا سوچتے ہیں، بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں. جی مختصر بات میرے بھائی ذرا کیجیے گا. الرحمن الرحیم. میں تمام پارٹیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ جو بھی ایم پی ایم این اے الیکشن لڑتے ہیں انہوں نے اپنے بدماش پالے ہوئے ہوتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. اس طرح یہ کام نہیں چلتا. جب تک یہ ان لوگوں کو سزائے موت نہ دیں، پھانسی پہ نہ لٹکائیں، اس وقت تک یہ کام نہیں چلے گا. خدا را یہ آپ جتنی بھی پارٹی ہیں سب کے سب یہ سن لیں کہ اپنے گنڈوں کو، اپنے جو جوان ہیں اپنے پیچھے انہوں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کو منع کریں. یہی کام کرتے ہیں، یہی بتاخوری کرتے ہیں. ان کو پیسہ نہیں ملتا تو یہ کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی تاجر کو لوٹ لیتے ہیں، کسی کو بے گناہ کو بچے کو اغوا کر لیتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تجارت تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے. یہاں پہ لیجئے. جی سب سے پہلے تو میں آپ سارا عالم صاحب سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ تنقید تو کر رہے ہیں، شاہی سید کو حکومت سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اپنے تجزیے بیان کر رہے ہیں. اور پھر میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو تجزیے ہیں آپ کے، یہ وہ تجزیے ہیں جو آپ کے اندر دماغ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کی کوئی پروف نہیں ہے. اور جو پروف دیے صدیق الفاروق نے اس پر حکومت ریٹ نہیں آ رہی. اور شاہی سید صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ فوج اس ملک کے مسائل حل کرتے ہیں. فوج نے اگر ادھر سب کچھ آپریشن کیے ہیں تو وہ اگر آ کے
बॉर्डर पर 30-40 लाशें दिन को नहीं गिरती, लेकिन कराची में 50 लाशें, 60 लाशें, 100 लाशें गिरती हैं, तो कराची में आने में कौन सी प्रॉब्लम है फौज को? दूसरी बात ये, वहाँ का ताजर पिट रहा है, वहाँ का मुसलमान मारा जा रहा है, वहाँ का पख्तून मारा जा रहा है, पंजाबी मारा जा रहा है, कौमियत है, वहाँ कौमियत की नाम है, पाकिस्तानियत का नाम कोई लिया नहीं जा रहा। दूसरी सही बड़ी बात है, सबसे बड़ी चाहे बात वो जो है, उर्दू स्पीकिंग हो, पाकिस्तान उर्दू मुस्लिम लीग बोलने नून वाले, की, पश्तो बोलने वाले सब जी पाकिस्तानी बिल्कुल, हैं, पाकिस्तान पाकिस्तानी मुस्लिम मर लीग रहे नून हैं। की जुमात के इन्होंने प्रोटेस्टेशन की है सबके लिए, ये रोडों पर क्यों नहीं आए? सदीकुल ठीक बात फारूक है। साहब से ये है, पंजाब के लिए इन्होंने क्यों नहीं किया है? पंजाब के लिए इन्होंने रोड ब्लॉक्स क्यों नहीं किए हैं? शर्मिला फारूक साहब से भी मैं साहिबा से मैं ये कहता हूँ कि मेहरबानी फरमा दें, अगर वहाँ पर फौज की रिट कायम हो सकती है, मुल्क बच सकता है, तो किस चीज की तकलीफ है? आने दो फौज को। ओके, ये अब फौज के मुतालबे तो आपने सुन लिए, बहरहाल जल्दी से लीजिए, फिर मैं जवाब भी लूंगी। जी कहूँगा कि अगर यहाँ पर नसीरुल्लाह बाबर साहब ने जैसे ऑपरेशन किया था, उस तरह का अगर ऑपरेशन किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हालात बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं हुकूमत में कोई भी पार्टी हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, वो सारे मिलकर अगर यही एक काम करें और उसको वज़ीर दाखिला को फ्री हैंड दे दे, ताकि वो वहाँ पर थानों में और उधर बैठ के वो ऑपरेशन करे, जो जो बंदा गलत काम करता है वही मौके पर उसको मार के उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। चले, ये तो तजवीज़ हो गई ना। अब मैं अबसार साहब पहले आप जवाब दे दे, जो अवाम ने आपसे कहा है कि तज्जिया आप करते हैं, उसके बाद शाहिद सैयद साहब और शर्मिला से बात करूंगी। समझ नहीं आया कि उन्होंने कहा तज्जिया ज़ाहिर है मैं करता हूँ, और वो कह रहे हैं कि आप पख्तून जो ANP है उसके ऊपर इल्जाम रख, मैं प्रूव आप कर दें कि MQM सिर्फ बता लेती है। मैंने कहा सारे बता लेते हैं, MQM का नाम लिया, सारी सियासी जमातों का, ठीक बात। फिर मैंने पीपल्स अमन कमेटी का लिया, ANP का लिया। ये हमारी सियासी अबसार साहब, इस वक्त सवाल है पाकिस्तान मैं का। यही कह रहा हूँ कि ये हमारी सियासी लीडरशिप की नाकामी है कि लोग इस तरह एक दूसरे को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि लीडर तो बैठे हैं, अभी भी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं गवर्नर हाउस में, कभी ईवान सदर में। जो पंजाबी पख्तून महाजर के लीडर्स हैं वो तो आपस में बैठ के बात करते आखिरी हैं। हल फौज ही है सिर्फ। अवाम को उन्होंने लड़वा दिया है अपने मसाइल के लिए। फौज को बार बार कहने बुलाने का, फिर अपनी पहली तो अपनी नाकामी तस्लीम करें और फिर फौज आएगी ना तो वो अपनी मर्जी से जाएगी, ये भी नहीं सोचना चाहिए। अभी इन्होंने खुद ही नसीरुल्लाह बाबर का नाम लिया है। तो एक सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन अगर कमिटेड होगी, अगर मुखलिस होगी, तो वो सबके साथ इंसाफ करेगी। किसी भी मसले का हल, खास तौर पे कराची जैसे मसले का हल सिर्फ ताकत में नहीं है। ठीक बात आप ताकत से कितने लोग, 2 करोड़ लोगों को मार देंगे? आप नहीं मार सकते। आपको एक इसका बाद में सियासी हल निकालना पड़ेगा, और सियासी हल उसी में है जब तक अंदर भत्ताखोरी की आदत खत्म नहीं होगी तमाम जमातों में। उनका जो टर्फ वॉर है कि ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है, ये सोच खत्म नहीं होगी, तब तक लोग मरते रहेंगे, चाहे फौज को छोड़ के किसी मुल्क की फौज ले आए। ठीक बात है। कि अगर अब भी ये गवर्नमेंट जो नाअहल है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ये हुकूमत जो नाअहल है, अगर ये समझती है कि इसे कुछ मज़ीद इख्तियारात की ज़रूरत है कराची और उसके ज़रिए से पूरे पाकिस्तान के हालात और इकानमी को ठीक करने की, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुलाए और उसमें ये मसला रखे और उससे इख्तियारात मज़ीद कोई लेने हैं तो ले। लेकिन असल मसला एनफोर्समेंट है, असल मसला निफाज है। वो कैसे होगा? वही एक्शन निफाज का ही तो मसला है शायद से। ये है। सब निफाज कैसे होगा? आप खुद हुकूमत के अंदर हैं, रोज इजलास तलब किए जाते हैं, बैठे जाते हैं। कितने अफसोस की बात है कि कल यहाँ पे गवर्नर आए, यहाँ पे वजीर दाखिला आए, सिंध की कैबिनेट आई और पता चला कि सिर्फ MQM की वापसी के ऊपर बात हुई है, कराची के अमन के हवाले से बात नहीं हो सकी। आपको इसके ऊपर दुख नहीं होता? और हल पेश करें आप हुकूमत को, आप इत्तेहादी हैं उनके। असमा, बात आपकी बहुत अच्छी है, दूसरे पे वजन डालना। मैं ये कहता हूँ कि ये 92 के ऑपरेशन में एक बंदा पकड़ा गया जिसका नाम है अजमल पहाड़ी, यूट्यूब के ऊपर है, दुनिया देखे उसको। अजमल पहाड़ी ने 100 मर्डर किए थे 92 में, अदालत से सजा याफ्ता था। बालू भाई को भी तो पकड़ना चाहिए ना। बालू भाई सुनो, 2005 में साहब, उसको भी पकड़ना चाहिए। सुनो 2005 में उस सजा याफ्ता बंदे को पेरोल पे रहा किया गया। जब तक क्रिमिनल लोगों को जो राह के लिए काम करे, जो इंडियन आर्मी से कैंपों से काम सीख करके आ जाए, उनको आप पेरोल पे रहा करो। किसने रहा किया था? किसका दौर? मुशर्रफ का दौर था। क्यों रहा हुआ था? और उसने आके फिर 60 बंदे मारे। तो लिहाजा आप जब तक वो बुराइयां जो आपने पिछले 15 साल से की है, वो आज की हुकूमत में, जमहूरी हुकूमत में जो मसलहत से चलता है, वो कैसे हल करेगा? आप उन लोगों को तो वजारत दे देते हो, जो ज्यादा कातिल होता है उसकी बड़ी वजारत मिलती है। आप अपने पैमाने सही करो, उस दौर के पैमाने के। जब से पाकिस्तान बना है तो आप तो अमरीत में पलते पलते आपने इंसाफ कहां दिया? किसको इंसाफ दिया? यहाँ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ 12 मई हुआ था, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समुटेशन क्यों नहीं लेता? अब वो खामोश है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जितना पावरफुल आदमी खामोश हो जाए
तो शाही सईद क्या करेगा? ये तो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे, शर्मिला कब तक हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पे डालते रहेंगे? अमन के लिए अगर हल करना है तो 1 मिनट का काम है, नहीं करना तो फिर आप कुछ भी कर ले, नहीं हो सकेगा, इसी तरह बरीउल जिम्मा होते रहेंगे लोग। क्या करना चाहिए 1 मिनट के अंदर कि लोग एक दूसरे के साथ मुफाहमत की राह पे आ जाए? अस्मा देखें, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। बात ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी से बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। जितने भी खून हो रहे हैं ये हम सब के सर पे हैं, इससे हम भाग नहीं सकते। ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, हम हुकूमत में, और हमारा मतलब ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ANP, फंक्शनल काफ लीग, NPP, जो लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, ANP की कोई जवाबदारी नहीं है। ANP की मर्डर में कोई जवाबदारी नहीं है। वजीर दाखिला आपका है, आप जाने, आपको वजीर दाखिला जाने। शाही सैयद साहब, आपकी बात सर आंखों पे, आपका एक ही वजीर है, लेकिन काबीना का उसूल ये होता है कि अच्छे बुरे काम में हम सब साथ हैं। एक वजीर घर में बैठा है, शर्मिला सुनो, वो एक वजीर घर में बैठा है, आपने किसी काम में हमसे मशावरत की नहीं है, और जब खुद करोगे तो खुद भरोगे। वजीर दाखिला रहमान सर आप मुझे जरा दो मिनट दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, मुझसे कई ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि कराची में हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। शायद MQM सबसे ज़्यादा बड़ी स्टेक होल्डर्स है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, आपका भी कहीं ना कहीं शुमार आता है। जिम्मेदारी सबकी बनती है कराची के अमन को कायम करने में। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ अस्मा, के यहाँ पर फ़ौज के बुलाने का बड़ा मुतालबा पुरजोर तरीके से है। देखिए, हर मसले का हल फ़ौज नहीं है, फौज परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फौज आ जाएगी, कब तक कराची में बिठाएंगे आप उसको? टेम्पररी तौर पे यहाँ पर जो है लावा दब जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? ये सियासी मसला है, ये सियासी तौर पे हल होगा। जब तक हम सब एक दूसरे को दिल से तस्लीम नहीं करेंगे, कराची में अमन नहीं होगा। तो वो कैसे और कब करेंगे? वो तारीख कोशिश कर रहे हैं अस्मा, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपने आवाम से बात करी, आपने हम सब से बात करी, और आपने देखा होगा कि एक जो बातचीत हो रही है, हर कोई अपनी अपनी बात यहाँ पर कर रहा है। अगेन वो पाकिस्तान की एक कौम वाली बात यहाँ पर नहीं आ रही। हर कोई MQM को इल्ज़ाम ठहरा रहा है, कोई ANP को, कोई पीपल्स पार्टी को। हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क है तो है, ये सूबा है तो हम हैं। बात ये है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, बात ये है कि जब हम कहते हैं कि नहीं हमारी स्ट्रेंथ ये, हमारी स्ट्रेंथ वो है, तो जब तो हम पुरजोर तरीके से बड़े जोश खरोश में खिताबत करते हैं, लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है तो हम सब ये कहते हैं नहीं जी हमारी तो जिम्मेदारी इतनी सी बनती है, आपकी जिम्मेदारी क्योंकि आपका वज़ीर दाखिला है, ठीक है हमारा वज़ीर दाखिला है, लेकिन आप भी तो एक बहुत अहम स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर। आपके अपने इलाके, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आपके अपने वोटर्स हैं। मसला तो चंद एक इलाकों में कराची में है और काफी अरसे से रहा है। कत्लो गारत वही होती है। नाम ले लें आप उन इलाकों के और उसमें किसकी स्ट्रेंथ है वो आप देख लीजिए। बाकी जो कराची का जो एरिया है वो तो खास तौर पर पुरअमन है। तो देखिए, और उनके सरपरस्तों को जिनकी लिस्टें एजेंट्स दे दी हैं हुकूमत को, उनको पकड़ा होना चाहिए, और इसके लिए सियासी मुफाहमत की जरूरत है, सही मानों में। ठीक है, इसके अंदर सियासी मुफाहमत की जरूरत है। खुदा करे कि पाकिस्तान के अंदर अपने अपने इक़्तिदार और अपने मफादात से अलग होकर पाकिस्तान के लिए भी सोचा जाए, और जब सब पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो अमन होगा, वरना अपने लिए सोचेंगे तो अमन नहीं होगा। फैसला आपका।